नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक पर। आज हम उस बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है लुकिंग बैक 1971 वॉर, हाउ बांग्लादेश वाज बॉर्न। कि हम जानते हैं 1971 वॉर पे भारत ने पाकिस्तान को हरा दिए थे और पाकिस्तान के दाहिना बाजू काट दिए थे। जो बाजू इस पाकिस्तान थे वो बांग्लादेश बन गया। उस बारे में हम बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अनिमित्र चक्रवर्ती मौजूद है और इतिहास के एक बहुत बड़े जानकार है, और शिवम चौधरी राइटर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है जो इसके पॉलिटिकल दिख पर बात करेंगे। तो नमस्कार सर, शिवम भाई आपको भी वेलकम। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पहले अनिमित्र जी इस बारे में बोलेंगे। आप बोलिए इस वार के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। Well, Vasudhaji, I think if I'm not so fluent in Hindi, so sometimes I will use the English words also. Okay, no problem. You can speak in English also. I think Shivam, you will not take any objection. I think. No. I'm fine with that. Okay, thank you. Well, the problem is, well, let me analyze it. Yesterday, it was 16th of December, when we were celebrating the victory day of India or Pakistan in Bangladesh. But the history is a changing reality. It must be taken into consideration at the very beginning. What we have learned, we have seen from the last 50 years, from 1972 to 2022, perhaps the concept of Bangladesh, it was the Mukti Juddha or Liberation War that had happened between 1969 to 1972, this ethos is no longer present there. What we are seeing is something else. The same. Now the question remains: is this a Bangladesh or the eastern part of a new Pakistan? That's the main reality for us. Since we have found even in the pages of social media that an intense animosity against India has risen within Bangladesh. Lots of fake reports or fake news that Indian army plundered the entire nation's economy by 1972. They had taken all the things that have been with Bangladesh at the time. These types of nasty propagandas are getting more and more popular across the country. And unfortunately, it must be taken into account that a huge number of educated gentlemen or educated ladies, they are also part of this entire nasty reality. So when we are celebrating the 6th of December in India, when we are talking, we are trying to see Bangladesh to the 1971 angle. But it's 2022. 50 years have passed already. 50 बरस बीत गए हैं। तो 50 बरस के बाद जो नया दृष्टिकोण हमारे सामने आया है ये कि हमें ये एनालाइज करना चाहिए, ये बांग्लादेश के जो सृष्टि हुआ, ये क्या इंडिया हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ या खतरनाक हुआ? Yes, you must remember. I think the people first know the name of Rao Farman Ali. He happened to be the #1 general of the Pakistan army at the time, stationed in East Pakistan. After Pakistan surrendered, that means all the ceremonies of surrender to General Narora had taken place, by Niazi taken place, he was being brought to India in a military aircraft, and he was with Mr. General Jacob, I think. General Jacob was asked by Rao Farman Ali one very significant question. Do you know the people who have been with you? Do you know these people whose nation you have given birth to? Do you know these people? These people happen to be the most vociferous part of the Eastern population that went for Pakistan. Had there been no Muslim voice from the eastern part of Bengal at that time, there would have been no Pakistan. So whether it's 1947 or 1971 or 2022, this happens to be the most striking reality.
And if you want to find this reference, you can go to the book of J.N. Dixit named Liberation and Beyond. This incident is written. So when we are talking of 6th December, it's a time for us to analyze what have we done, how far has it been beneficial for India, kitna हमारे लिए सदर्थक हुआ. And at the same time, it must also be said, the 1971 also marks the one of the most horrendous genocides of the Hindus written in the history of mankind. According to Robert Kennedy, almost 3 million people were butchered in that war of Bangladesh, the unarmed civilian population, and 97% among them were Hindus. More than 1 lakh of women were raped, mutilated, and put to death by the Pakistan army. Among them, 93% had been Hindus. Among the population that took refuge in India at the time from East Pakistan, the 95% people had been Hindus. Why? There's no persons except the border district area, no Muslim gentleman or lady except the border district of this India-Pakistan border had any need to come into India. So while we are analyzing 6th December, we are celebrating 6th December, these facts must be known to us at the same time. Now please, Shivam ji. शिवम भाई, आप उस वर्क के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे दोबारा से बुलाया। नमस्कार। जी, आपने जो बात कही कि जब बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 में, तो पाकिस्तान का एक बाजू काट दिया गया, तो मैं आपकी बात से थोड़ा डिफर करूंगा। दरअसल जो पाकिस्तान था वो भारत की बाजू काट के ही बना था। तो वो सबसे पहला जी, तो जो माँ भारती का साथ जो गलत हुआ, मैं सबसे पहले तो उसे एक्नॉलेज करूंगा। 1947 में जो पार्टीशन था वो बहुत ही गलत स्टेप था, उसे रोका जा सकता था और तब की पॉलिटिकल लीडरशिप उसके ऊपर काम कर सकती थी, चाहती, लेकिन कुछ लोगों को ये जल्दी थी कि किसी तरीके से सत्ता हमारे हाथ में है। अंग्रेजों को भी जल्दी थी किसी तरीके से हम यहाँ से जाए, क्योंकि जो मेन प्लान था वो था जून 1948 में इंडिया को छोड़ने का, लेकिन वो क्योंकि एक नेवल म्यूटनी हो गई और सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत जल्दी जाना पड़ा। उसकी वजह से जो हमारा एक गलत पार्टीशन हुआ कि एक वकील को हमने इंग्लैंड से बुलाया, उसके बाद उसने एक आउटडेटेड नक्शे उठाए और उसने जहां चाहा वहां पे लकीरें खींच दी और भारत का विभाजन हो गया। उसमें एक और चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि अनिमित्रा जी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा आवाज उठी थी पाकिस्तान के जन्म की, वो उठी थी बंगाल से। निश्चित तौर पर जो सबसे ज्यादा आवाज उठी थी भारत के विभाजन की, वो उठी थी यूपी, बिहार और बंगाल, जो आज के टाइम में ग्रीन बेल्ट बन गई है। मैं ग्रीन बेल्ट इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये वो बेल्ट है जिसमें जो मुस्लिम बाहुल्य, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो एक अलार्मिंग रेट से आगे बढ़ रही है। तो यही वो पैच था जिसने मांग की थी एक अलग पाकिस्तान की। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से मात्र 7.5 मिलियन लोग ही भारत छोड़कर गए, जबकि उस समय भारत में मुसलमानों की आबादी करोड़ों थी। तो जिस चीज के लिए भारत का विभाजन हुआ था, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो ध्येय था, जो वो लक्ष्य था, जो वो हमारा मोटिव था, वो ही पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद आता है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश का जो जन्म है, उसका जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो 1971 नहीं था, वो ट्रिगरिंग पॉइंट 1950s में ही आ गया था। रीजन क्या था? जो पाकिस्तान था उसका जो पंजाबी लोग थे, जो उस ब्यूरोक्रेसी को, उस राजनीति को चलाते थे, जो आज भी चलाते हैं, वो ये मानते थे कि जो बांग्लादेशी हैं वो छोटे छोटे, काले, अनपढ़ और कमजोर लोग हैं, और हम गोरे, लंबे, तगड़े, वो अपनी एथनिकली अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते थे बांग्लादेश के ऊपर। इसी का कारण है कि जब वहां पे इलेक्शन हुए 1970 में और मुजीबुर रहमान को बहुमत मिल गया, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा। मतलब उसके बाद भी जो सत्ता है वो मुजीब के हाथ में नहीं दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने ही हाथ में रखी। ये एक वो पॉइंट था जिस समय बांग्लादेशियों का, मैं कहता हूं कि जो थ्रेशहोल्ड था वो पार हो गया था। उसके बाद उन्होंने खुल के बात की, वरना 1950 में भी जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बयान दिया कि जो राष्ट्रभाषा है वो उर्दू होगी, तभी भी बांग्लादेशियों ने विरोध किया, क्योंकि वो अपनी जो एथनिसिटी है, जो अपनी आइडेंटिटी है, उस समय कहीं ना कहीं इस्लाम से ज्यादा जो उनकी आइडेंटिटी थी
वो अपने आप को रिलेट करते थे बंगाली कल्चर से। तो उसपे कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि हमारा जो पंजाबी और उर्दू बोलने वाले हैं उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं पॉलिटिकली, मिलिट्रीली और हर चीज से। इसीलिए 1971 में वो ट्रिगरिंग पॉइंट आया, और भारत के लिए ये बहुत जरूरी था उस समय। देखिए अब हम 50 साल बाद उसे किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, वो उसका कारण ये है कि इन 50 सालों में हमने किस तरीके से बांग्लादेश की जनता, उनसे हमने कैसे संपर्क किया, उन्हें कैसे नर्चर किया। आज बहुत लोग हो सकते हैं कि भारत का विरोध कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि जो आज की जनरेशन है, 2 या 3 जनरेशन उसके बाद निकल चुकी है, उन्होंने वो जेनोसाइड नहीं देखा है, वो पार्टीशन नहीं देखा है, वो चीजें नहीं देखी है, उन्होंने सिर्फ सुनी है, समझी है। आज बांग्लादेश का जो युवा है या बांग्लादेश की जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो एक डिफरेंट एरा में जी रही है। वो आज क्या हो रहा है आज वो देख रही है, आज वो अपने आप को इस्लाम से जोड़ रही है या वो चीजें देख रही है, इसलिए आज ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन उस समय 1971 में ये बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान का पार्टीशन किया जाए, क्योंकि वो एक तरीके से आज हम जिस 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, वो 3 फ्रंट वॉर में तब्दील हो जाती है अगर वो आज पाकिस्तान होता। हमारे पास वेस्ट से भी दिक्कत होती, ईस्ट से भी, और नॉर्थ से तो हमारे पास दिक्कत है ही। तो उस समय इंदिरा जी ने जो भी निर्णय लिया सैम मानेकशॉ की सलाह पे, वो बहुत अच्छा निर्णय था। और इस वॉर में हमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, भारत की जो एक डाइवर्सिटी है उसे कैसे दर्शाता है। एक हिंदू बहुल, एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट को की आर्मी को एक पारसी गवर्न कर रहा था, जो सरेंडर हुआ वो एक पंजाबी के सामने हुआ, और नेगोशिएशन एक ज्यू ने किया। तो ये बहुत सारी चीजें, ये चीजें पाकिस्तान नहीं समझ पाएगा। इसीलिए भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ या वो स्थितियां डेवलप हुई, तो भारत का कहीं ना कहीं अपर हैंड था, क्योंकि पाकिस्तान की आज की और 47 से ही स्थिति ये रही है, एवरी नेशन हैज आर्मी, बट पाकिस्तान इज अ क्यूरियस केस वेयर आर्मी हैज अ नेशन। तो इसीलिए वो चीजें नहीं समझ सकते। उन्हीं चीजों को मतलब इंडिया के लिए पास एक एडवांटेज था, और 1971 में जो भी निर्णय भारत ने लिया वो एक बहुत सही निर्णय था। लेकिन आज के समय में हम ये कहें कि हम ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि आज बांग्लादेश भारत के साथ उस मजबूती से क्यों नहीं खड़ा है, क्योंकि वो 71 वाली स्थिति आज नहीं है। आज एक बिल्कुल ही नया टाइम है। 51 ईयर्स निकल चुके हैं। 51 ईयर्स जो आज की जनरेशन है उसने वो चीजें नहीं देखी हैं। वो आज इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बिल्कुल नए पैरामीटर्स के ऊपर तैयार हो रहे हैं। आज की सरकारों को उन चीजों को देखना पड़ेगा, जैसे कि तिस्ता जो नदी है उस तरह के मुद्दे हमें सुलझाने पड़ेंगे, जो कॉरिडोर्स वाला मामला है वो हमें सुलझाना पड़ेगा, फिर कैसे हम आपस में ट्रेड बढ़ा सकते हैं, मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम चाइना को वहां पोर्ट डेवलप करने से रोक सकते हैं। इन चीजों को अगर हम ज्यादा प्रमुखता से उठाएं और उन लोगों को ये याद भी दिलाएं कि किस तरीके से एक बड़े भाई की तरह 1971 में हम आपके साथ खड़े थे, आपके नेता के साथ खड़े थे। इवन मुजिब के असैसिनेशन से पहले रॉ ने यह भी बताया था कि आपके साथ होने वाला है। तो अगर उन चीजों को याद दिलाएं और जो आज की सरकार है उसे हम सपोर्ट करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष की सरकार है वहां पे। अगर वहां पे खालिदा जिया आ जाती है तो स्थिति अलग होगी। तो इन चीजों को आज की सरकारों को बहुत, और ये एक डायलॉग होना चाहिए जनता से जनता के बीच ज्यादा, ना कि सरकार से सरकार के बीच। इस जी वन बाय वन आई एम आस्किंग यू। एक बात मुझे जानना है, अगर जब बांग्लादेश को अलग कंट्री नहीं बनाकर अगर भारत के साथ जोड़ दिए जाते तो क्या आज ज्यादा अच्छा होता है? क्योंकि आज हम देखते हैं जेएमबी एक बड़े समस्या की तौर पर हमारे देश में आके खड़े हैं। अनिमित्रा जी, आप क्या बोलेंगे? इट वुड हैव बीन अ सुसाइडल एक्ट, ये आत्महत्या होता। क्योंकि अगर आप एक देश, एक राष्ट्र बनता है, उसके जो मेजोरिटी जो पीपल है उसके विचार का धारा से। देखिए हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म क्या बन गया है ये भी हम जानते हैं, लेकिन there is a word for secularism. But what defines the Islamic population is something else. देखिए ये तो एक दिक्कत की बात है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर में जो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी के बगैर कोई एकेडमिक परस्यूट के जो चांसेस बहुत कम है. So we have not been able to gauge their mind.
but it must be said at the very moment that the entire chunk of the East Pakistan or the Bangladesh happens to be the same center where more than 70 genocides of Hindus have taken place already in the last 75 years. That means that the Bengal, the Hindus residing in that chunk of the land, happens to be the most affected minority in the global context in the post-Second World War scenario. Unfortunately, we do talk of Myanmar, we do talk of Somalia, but Bangladesh happens to be a more striking reality for us, most brutal reality. Well, unfortunately, the United Nations is yet to do all these things, but this is different. Had India taken Bangladesh or East Pakistan or engulfed East Pakistan at the time, the entire new land was quite enough to cut a huge chunk of Eastern India from the rest of India. ये आप जानते ही हैं, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान में अंदर अगर हम देखा जाए तो एक बात बोलना पड़ेगा कि 1947 के बाद में जो पाकिस्तान बना उसकी स्थिति कैसा था. इस मस्ट बी कॉन्टेक्ट. 1947 के बाद जो बांग्ला को जो राष्ट्रभाषा के दौर में जाना पर मैं बोला कि Bengali must be the state language of Pakistan. This demand had been raised by the Hindus only. In 1949, in the Karachi Constitutional Assembly, against Liaquat Ali Khan, two Hindus, Dhirendranath Dotto and Sri Chandra Chatterjee, raised this proposal, and they were supported by only the 8 to 10 Hindu MPs, while the rest of the Muslim MPs in the Constitutional Assembly ridiculed them. Till 1952, the entire concept of Bengali as a state language movement was regarded as a conspiracy of India and the conspiracy of Hindus. On 21 February 1952, when the students were martyred in the states of Dhaka, a very prominent newspaper from East Pakistan at the time, called Morning Star, had the headline, "Dhotis are roaming around in the states of Dhaka." From the very beginning, to 1971, there have been so many problems, economic confrontation between the two halves of Pakistan, but at every juncture, the innocent and unarmed Hindus have become the only targets. So, if in this situation, the East Pakistan was joined with the rest of India, it would have been a terrible blow to the India, to the national sovereignty. Since that same situation that led to the birth of Pakistan would have germinated at the time, it must be remembered that even today, if you go to the length and breadth of Eastern India, the same news, the same views are coming shortly. शिवम भाई, आप क्या बोलेंगे? आपके क्या राय है इस बारे में? जी, मैं अनिमित्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बांग्लादेश को भारत का पार्ट नहीं बनाना चाहिए था. रीजन क्या है कि आप किसी देश की जमीन को तो जीत सकते हैं, लेकिन उस देश के लोगों को कैसे जीतेंगे ये इंपॉर्टेंट है. जमीन को कब्जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लोगों को जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता. वो भारत से अलग हुए क्योंकि वो अपने आप को एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर डेवलप करना चाहते थे. फिर वो पाकिस्तान से अलग हुए क्योंकि वो अपनी बंगाली कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे, या ये मानते थे कि बंगाली कल्चर की वजह से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. अगर उन्हें हम भारत में जोड़ते, देखिए वो पहले ही अलग हो चुके थे ना, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे. क्या सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए हमें जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर जमीन के टुकड़े के साथ ही जाना होता तो हम भूटान को बड़े आसानी से जीत सकते हैं, श्रीलंका को बड़े आसानी से जीत सकते हैं, आसपास के देशों को बड़े आसानी से हम जीत सकते हैं. लेकिन जमीन का टुकड़ा पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लोगों को जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसीलिए अगर बांग्लादेश को हम भारत से जोड़ते तो वो एक सुसाइडल मूव होता. वो बहुत अच्छा रहा कि भारत ने वो निर्णय लिया. और सबसे अच्छा बात क्या रही कि जिस तरीके से इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद अमेरिका वहीं पर टिका रहा, भारत ने वो नहीं किया. भारत ने जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, वहां की सरकार को 2 या 3 महीने के अंदर ही वहां की एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर और सब कुछ उनके हाथ में देके और वो भारत वापस आ गया. ये एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेप था.
ये साफ दर्शाता था कि हमारी नीयत किसी देश को कब्जाने की नहीं है, हमारी नीयत सही लोगों को जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनकी इच्छा है, उसको पूर्ण करने की है। इसलिए भारत का वो निर्णय बहुत सही था, वहां से जल्दी निकल आना और भी सही था। और क्योंकि भारत की जो नीति है 1947 से, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की है, एक डेमोक्रेसी की है, तो भारत ने वो एक जो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट किया, एक बेंचमार्क सेट किया। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी जितने देशों के ऊपर हमला हुआ दूसरे देशों का, इन द नेम ऑफ मतलब उन्हें फ्रीडम दिलाने के लिए, जो सो कॉल्ड अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज करती है, तो वो हमेशा वहां पे जम जाती है, क्योंकि वो वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। लेकिन इंडिया ने वो चीज नहीं की और वहां के लोगों को वो चीजें उनके हाथ में देके आ गए। तो भारत का बहुत ही अच्छा निर्णय। जी सर, क्या आपको नहीं लगता भारत ने बांग्लादेश के लिए अपने बहुत सैक्रिफाइसेस दिए, इंडियन आर्मी के बहुत सोल्जर्स ने अपने जान गंवाए, भारत ने फिनेंशियली और बहुत सी तरीके से फिनेंशियली सैन्य मदद देकर बांग्लादेश को सिर्फ बनाया। बांग्लादेश को खारे करने में भारत का बहुत हाथ थे। लेकिन एक बात आज हम देख रहे हैं, बांग्लादेश ही भारत के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगेंस्ट जा रहे हैं मतलब बांग्लादेशी इस्लामिक जो एक पावर है, तो भारत में वो जो उग्रवादी कार्यकलाप कर रहे हैं, जैसे खागरागढ़ एक्सेट्रा कर रहे हैं। अलकायदा का जितना मेंबर पकड़ा जा रहा है बांग्लादेशी है। रोहिंग्या को भारत में घुसा रहे हैं बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी इन्फ्लिट्रेशन के तो हम सब जानते हैं, जो आज खासकर हमारे स्टेट पश्चिम बंगाल भुग रहे हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अनिमित्रा जी। अनिमित्रा जी, हाँ जी जी, हाँ, आप Well, to be very frank, if truth be told, Bangladesh happens to be the breeding ground of Islamist terrorism across the globe. Yeah, this is not my words only. This has been stated by the economic and the political pundits. Even the Shanghai Review from the Economic Times of Singapore, lots of Bangladesh nationals have also been arrested with dangerous weapons. There's no doubt of it. But to be very frank, we must have to accept one thing. So just now, Dr. Vasudha was talking of the immense sacrifices of India. You will be asked to know, in spite of such gallant sacrifices of the Indian soldiers, in spite of such financial assistance of India, there is not a single memorial across Bangladesh in memory of the soldiers of India who sacrificed themselves. भारत के जो सैन्य थे, वो जो अपना आत्मा बलिदान किया 1971 में, जिसके जाकर बांग्लादेश का स्वाधीनता हुआ, वो जन्म हुआ, उनके श्रद्धा में एक भी मेमोरियल सारे बांग्लादेश में नहीं है। This is a striking history, this is a striking reality. You should have to accept this. And this has already come to the media, Bengali media, and it has been paid by many Bangladeshi nationals, and there's not a single. What does this indicate? For successive periods, but successive governments have tried to decry, have tried to hide out the fact that India played a substantial role in the nation's liberation. Nowadays, well, a few days back in this Facebook, I was just confronting with a Bangladeshi national. He said, had there been no Indian assistance, we could have won the war. So I said, how? How can an unarmed population win a war against a professional army? He had no answer. So this happens to be the anti-Indian and anti-Hindu rhetoric in Bangladesh getting prominence more and more. Number two, perhaps you do know that on each and every day across Bangladesh, Hindus are getting targeted and attacked. And this is not a striking or sudden development. This has been going on for 80 years, for the last 47 to 2022 at this moment. After all, it's the land of Noah Khali. And each and every Hindu is being considered as an agent of India in that land. So, what the general mindset, such a nefarious definition,
that they are out to destroy anything that is Indian, despite they use all the Indian products, from the toothpaste to the towels to the sanitaries to all the other things, blah and blah. They prefer to use the Indian goods and Indian commodities, but their anti-Indian rhetoric is gaining prominence. Hence, they, according to them, anything that moves them, anything that propels them to go against India is a mazhabi intikam, that means a religious vengeance. After this 50 years, I shall have to say that to India, 1971 had been a overwhelming victory. I think if I'm not wrong, the newspaper called the Jang in Pakistan had stated that this 1971 is the first overwhelming victory of the Hindus on the Muslims in the history of the Indian subcontinent in the last millennium. So this has been the mindset in both halves of Pakistan. And let me straight to you very quickly. The economic confrontations were there between 47 to 71 in the whole of Pakistan. There have been problems, there have been crises. But how many people among the majority population here did crave for a separate country? Remains to be investigated. There are certain theories even that even Mujibur Rahman didn't want a separate Bangladesh. If you go through the history, if you analyze, you'll find that when he was talking to a mammoth crowd, when he was asking everyone to come up and go up and come up with your arms and everything, he ended the speech with Jai Pakistan. Following the creation of Bangladesh, when he came to Calcutta for the first time in a joint meeting with Indira Gandhi, the Prime Minister of India at the time, the mammoth crowd in the brigade in Calcutta, his speech was ended by the same Jai Chaudhary. Who is Chaudhary? Chaudhary happens to be his mentor, and Chaudhary happens to be the first person who went out and gave a call for the Hindu bloodbath in 1946, 16th August. This happens to be the reality of East Pakistan and Bangladesh. So anything devilish happening in Bangladesh, yes, India is a reality. People must be amazed to know that what we have done for them, how ingratitude they are. Well, that's the characteristics. That's the Islamist population. If you go through the World Cup just going on event, look at Morocco. If Morocco had won against France in the semi-final, it would have electrified the entire Islamic world. This reality is also getting prominent in Bangladesh. And more cadres from Bangladesh, not only the rural, but urban educated youth are being found in Al-Qaeda and also in Islamic states. Take it from me. Partition of India was not a final solution. It was an armistice. It was a ceasefire. And ceasefire means the two armies are standing on opposite directions. We, the Hindus, have been the worst fools in the history of mankind. We have not prepared ourselves, but Bangladesh is preparing itself to give the final call. And there should be no second ceasefire in the Indian subcontinent. 47 partition was a ceasefire, and the war is going on still, surreptitiously, fugitively, silently, but it's going on. शिवम भाई, आप क्या बोलेंगे? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनिमित्रा जी से। ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है बिटवीन टू सिविलाइजेशन, जिसमें मैं कहूंगा कि एक सिविलाइजेशन है, दूसरी सिविलाइजेशन है भी नहीं। और दरअसल ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से इस्लाम, जैसे कहते हैं ना, सलामी स्लाइसिंग हो रही है इंडिया की। पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद में जिस ग्रीन कॉरिडोर की बात करता हूँ, आप देखिए बांग्लादेश है, उससे लगता बंगाल है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है। किस तरीके से पाकिस्तान से और अफगानिस्तान बांग्लादेश तक जुड़ती हुई एक लाइन है जो ओवर पॉपुलेटेड होती जा रही है विद इस्लामिक पॉपुलेशन। तो इस तरीके से एक पूरा एजेंडा है जिस तरीके से चलाया जा रहा है।
आपने सवाल पूछा कि किस तरीके से बांग्लादेश भारत के लिए अनग्रेटफुल हो चुका है। इसका जो सबसे बड़ा, देखिए जो बांग्लादेश का पार्टीशन था वो दो कारणों से हुआ था। सबसे पहला कारण था कि जो पाकिस्तान की जो एट्रोसिटीज थी बंगालीज के ऊपर, वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो, या जिस भी तरीके से हो, एक तो वो कारण था, एक कहीं ना कहीं वो बंगाली प्राइड थी, वो था। लेकिन वो चीजें अब पीछे बैकस्टेज ले चुकी है, बैकसीट ले चुकी है। अब जो मेन चीजें हैं जो फोकस में है वो एक इस्लामाइजेशन है, जो रेडिकल इस्लाम, जिसने एक रेडिकल पॉलिटिकल इस्लाम ने जो जन्म लिया है स्पेशली पिछले 30 से 40 सालों के अंदर, उसने कहीं ना कहीं उन चीजों को अपनी ग्रिप में ले लिया है। आप देखते हैं कि भारत से एक कोई इस्लामिक स्कॉलर कुछ बात आता है, उससे लोग इन्फ्लुएंस होके वहां के जाके रेस्टोरेंट में जाके ब्लास्ट कर देते हैं। तो किस तरह का एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश के अंदर हो गया है। फिर आप देखते हैं कि कहीं कोई इंडिया में कोई बाबरी मस्जिद गिरती है तो उसका रिपरकशन बांग्लादेश में होता है, वहां पे लोग हिंदुओं को मारा जाता है। नोआखाली की तो बात की है, सोहरावर्दी है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, 3 मिलियन 30 लाख से ऊपर हिंदुओं को मारा गया, लाखों हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों को मार दिया गया। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जो वहां पे हिंदू है वो पॉपुलेशन तब जब पार्टीशन हुआ उस समय अराउंड 30% थी, आज 7 या 8% रह गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। तो ये सब चीजें हैं इस्लामिक, जो आज जो चीजें 71 में थी आज वो नहीं है। 51 साल, बहुत सारा पानी नदी में बह चुका है, देयर इज इनफ वाटर गॉन। तो मैं यही कहूंगा कि भारत को अब नए तरीके से सोचना चाहिए, एक इतिहास के हैंगओवर में नहीं रहना चाहिए। मैं इसे इस तरीके से यूज करूंगा कि हमने 71 में किया तो अब वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो आज के हिसाब से जी रहे हैं, आज उनकी इच्छाएं क्या है, क्योंकि उस पॉपुलेशन ने वो 50 साल पहले की घटनाएं नहीं देखी हैं। हमें समय के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। हम ये नहीं मान के बैठ सकते कि हमने कुछ किया है। हम देखिए, एक घर में पिता का बेटा नहीं सुनता तो बांग्लादेश भारत की क्यों सुनेगा। वो अपने जो हित हैं, जिस तरीके से वो आज का यूथ सोचता है, जिस तरीके का वहां एजुकेशन है, एक्सपोजर है, वो उसी तरीके से अपने आगे के भविष्य के निर्णय लेगा। तो भारत को भी अपने रिकैलिब्रेशन उसी हिसाब से करना चाहिए। हम इतिहास में बैठकर नहीं जी सकते कि हमने 50 साल पहले एक चीज की तो आज वो हमारा एहसान चुका है, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड स्टेज पे जो डिप्लोमेसीज हैं या जो रिलेशंस है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं। आज बांग्लादेश का म्यूचुअल इंटरेस्ट कुछ और है, वहां की जनता किसी और तरीके से सोचती है। वो सही है या नहीं है उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है कि इस्लामिक रेडिकल इस्लामाइजेशन हो गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज के जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, हमें उसी तरीके से उस चीज को देखना होगा। हाँ, अगर हमें ये लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सिक्योरिटी इशू है, ये सब है, उन चीजों की हमें बात करनी होगी, लेकिन हम 1971 के हैंगओवर में नहीं जी सकते। वो चैप्टर खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। हाँ, हम साइकोलॉजिकली उन चीजों को हम पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं कि आपके 93,000 लोगों ने सरेंडर किया, हम ऐसे जीते, या उन चीजों से हम सीख ले सकते हैं। लेकिन भविष्य की नींव उस चीज के ऊपर हम रखें, ऐसा नहीं है। भविष्य की नींव आज की परिस्थितियों के हिसाब से, जो आज प्रेजेंट सिनेरियो है, उस हिसाब से हमें रखनी हो। जी, तो आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि हमें भारत को किस तरह से सावधान होना चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि भारत आज भी बांग्लादेश को जितनी हो सके सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश आज चाइना की गोद में जाके बैठने के बात कर रहा है। इस बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? पहले अनिमित्रा जी। Well, at present, Bangladesh is going through lots of changes. What we have learned is that one of a great chunk of the population in Bangladesh is completely against Sheikh Hasina, but she is in the power still. And I don't know whether she will be supplanted or replaced by BNP at any time. I don't know whether BNP has any future in Bangladesh, but it must be accepted that among the in the Awami League, well, we must also just right to that we must say that it's true that Sheikh Hasina has almost finished the Jamaat in Bangladesh almost, but there's also a reality that all those Jamaatis are now in Hifazat Islam. And Hifazat Islam happens to be a very strong ally of Awami League. Only in 2021, during the Durga Pujas, the Hindus were attacked, the Hindus were subjugated to lots of atrocities and everything. And at that time, it was
stated in the Bangladeshi media, but these are not any these are not in the army, these are from Hifazat Islam. But unless those leaders or cadres were being provided sanctuary by the government, it was not possible for them to attack the Hindus so vehemently, but it didn't happen. So we must analyze Bangladesh very separately. I must have the liberty to say that there is a strange discrimination in India. Well, what's the discrimination? I have found a lot of people across India are yet to know that Bengal was also petitioned in 1947 like Punjab. They get astonished. But it's a reality. Then another cruel reality is that Bengal happens to be the only land or province in the last century that has been partitioned twice, in 1905, in 1947, in 1971, and each partition was succeeded by a bloodbath. In 1940 and 1905, the Hindus rose against the British government's conspiracy to divide Bengal, and that led to the beginning of this independence movement across India. But that was also followed by a spate of riots in Mymensingh, in Dhaka, in Calcutta, in lots of areas. Then the 1947 and 1971. Well, I do think that India must realize these aspects. Number two, India has concentrated a lot on the Western question that means the borders with Pakistan. I think it's the time for India to concentrate on the Eastern question in the same manner, with the same importance. They must give the concentration. Since, according to my experiences, being a field activist, and also to others, lots of areas in the Eastern India happen to be porous. Unlike the well-guarded international borders in the Indo-Pakistan region, in Gujarat or in other areas, the situation in the border is quite terrible. And if you can see, if the one incident is enough for you to understand. Paresh Rawalji in Gujarat election is talking of the Bangladeshi nationals or the Rohingyas. So where is Gujarat and where is Bengal? How can the Rohingyas enter India? After they will have to go through lots of states to reach the shores of Gujarat. So how can the term Gujarat, the Rohingya, come to the Gujarat population either unless we can see the Rohingyas? There is a good presence in Rohingyas, of course, almost in every state of India. Despite the fact that India has completely stated in a very clear manner that Rohingyas are unwanted. And if you want to know the real intentions or the characteristics of the Rohingyas, just focus on an area called Cox's Bazar in Bangladesh. It's a very well-known port area in Chittagong, and the Rohingyas and the local Muslims enjoy not only cacophony, but violent fights between them is a daily reality in that part of Bangladesh that has made the entire Bangladesh scared. Now the question is, whether India is concerned with all these factors in a very serious manner. The northeastern states, the eastern state of India, the eastern part of India, has not got the concentration, the due concentration from the central government that would have taken place by now. The border situation is extremely dangerous. If I do state, you might not believe, but I must confirm the fact that a lot of portions of the Bihar and Jharkhand have become the fortress of the Christian missionaries. A lot of districts in Bengal have become almost like a Lebanon. There was pitched battles and violent skirmishes are going to define the destiny. In this situation, if India remains reluctant or quite lazy to assert in Bangladesh in a different way, I think the future of the Union of India is going to be very, very precarious. I must emphasize this more, since when a nation, when area becomes the breeding ground of a kind of terrorism, it gets a lot of money. It gets a huge amount of money. And only a few months back, Shivam Chaudhary has said
like you have said, that Bangladesh has become a target or a pawn of the Chinese diplomacy. There has been lots of difference in the last 10 years. A decade back, in 2014, the most popular slogan in Bangladesh was "Mora Amra Sabai Taliban, Mora Habu Afghan." That means we are all Taliban and we will become Afghans. This has been the most popular slogan across Bangladesh. 2014. Now 2022. What has been done by now is that the entire Bangladesh has been surrounded by a huge masjid network. If you come across the madrasas in the districts of Patuakhali, in the lower part of Bangladesh, or just on the north of the Kirtankola River, you will be astonished to see, since you will, on me, the same thing happened with me. I just failed to determine whether it's a madrasa or a fortress. That means a madrasa, all the technological amenities that can be found with the latest developments across the globe are there. And the persons who are reading and the persons who are teaching have the same mindset, is to be the mujahidins. If in this situation, the neighboring country, however big it is, can't be conscious enough, can concentrate on this Eastern question, it is going to threat the national solidarity of India within the next 5 years at least. I'm not saying at least, but within the next 5 years, if not more. There's no doubt to the fact India is under threat. And you, as Shivam has already said, that you can't expect any loyalty from the ungrateful people. आप ऐसा की बात हो, ऐसा फरामोश से बात नहीं कर सकते आप. It can't be. If anyone what to say, the notion or ideological standpoint is that I should have to kill all the persons who are against my faith. That means the person, ideology, and the government supporting him is becoming more and more dangerous or a threat to the security of the neighboring country. So there must be more researches, there must be more academic pursuits, and India must get very, very serious on the eastern border, perhaps more than Pakistan even. Pakistan is almost dead, and Bangladesh has become the new Pakistan, a new threat for it. शिवम जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? शिवम भाई जी, सबसे पहले तो जो ईस्टर्न बॉर्डर है, ये श्योर है कि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह डेवलप हो रहा है, लेकिन मैं ये मानूं कि वो इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए या यूनियन ऑफ इंडिया के लिए कोई मतलब एक बहुत ही वो स्थिति आ गई है कि खतरा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. उन चीजों को कंटेन किया जा सकता है. सबसे पहले तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो वहां पे ऐसे लोग हैं जो प्रो इंडिया है, वेदर इट इज हिंदू और अ वेरी माइन्यूट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, कि उन्हें नर्चर किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए. अब रही जो बात चाइना की है, जो चाइना है वो पैसा प्रोवाइड करा सकता है बांग्लादेश को. हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो बांग्लादेश के साथ हमारे ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स है उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए. इको रही, हेलो जी, जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, ताकि उन चीजों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए ना ही इस्लामिक जो रेडिकल्स हैं और ना ही चाइना है या कोई और वेस्ट है वो उसे एक्सप्लॉइट कर पाए. जल्दी से जल्दी ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए. हमारी जो बॉर्डर इशू है, उसे जो बॉर्डर की फेंसिंग है या उस तरह का जो मॉनिटरिंग है, उस तरह की चीजों को हमें, और देखिए ये फर्स्ट एड पॉइंट है. मैं बिल्कुल अनिमित्रा जी की बात से सहमत हूं कि जो ये प्रॉब्लम है ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंडिया को इंडिया नहीं देखते, वो एक हिंदू स्टेट की तरह देखते हैं. वो ये देखते हैं कि यहाँ पे काफिर रह रहे हैं. वो ये नहीं देखते कि एक पड़ोसी देश है. उन्हें ये लगता है कि ये काफिरों की धरती है जिसे एक दिन हमें जीतना है. ये उनकी किताब में लिखा है. निश्चित तौर पर ये माइंडसेट लेके वो चलते हैं. लेकिन जो फौरी फर्स्ट एड है, जैसे बॉर्डर फेंसिंग है, ऑनगोइंग इश्यूज हैं, वहां ऐसी सरकार को स्थापित करना है जो भारतीय पक्ष का हो, हमें ये करना है. हम इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हम कोशिश करें कि जाके
डी रेडिकलाइजेशन कर दें अफगानिस्तान में, हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को ज्यादा मजबूत करना है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन का डी रेडिकलाइजेशन करें, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम हमें ईस्ट या वेस्ट बॉर्डर से है, जो 2.5 फ्रंट वॉर है, जो 0.5 फ्रंट जो विद इन इंडिया है, उससे हमें ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां का व्यक्ति भी जब भारत में आएगा तो उसे कोई ना कोई लोकल सपोर्ट मिलेगा। वो लोकल सपोर्ट भी तो किसी एक खास तबके से, एक खास पॉपुलेशन से उन्हें मिल रहा है। तो वो डी रेडिकलाइजेशन अगर हम इंडिया में कर लेंगे तो वो उतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। और दूसरी बात, जैसे अभी उन्होंने कहा कि एक नारा लगता है कि हम भी अफगान और हम भी तालिबान बनेंगे, तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने अपने देश को खत्म कर लिया है, जो आज वो झेल रहे हैं, अगर वो ये मेंटेलिटी रखती है कोई पॉपुलेशन की हम ऐसे हो, तो भगवान करे वो और भी उस नरक को तालिबान भोगे। तो, ये भी तो हम देख रहे हैं, तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये भी तो देख रहे हैं। देखिए वहां खेल दूसरा है। रीजन क्या है कि तालिबान को चाहिए पैसा, और भारत पे पैसा, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $600 बिलियन, पाकिस्तान का 6। तो भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पैसा दे सकता है उनकी पिटाई करवाने के लिए, तो वो आपको तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच ही नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जो भारत के अंदर का जो 0.5 फ्रंट है, उसे कैसे वो कंटेन करेगा, किस तरीके से उसमें डी रेडिकलाइजेशन लाएगा, किस तरीके से यहाँ के मदरसों का करिकुलम चेंज होगा, किस तरीके से अपने लोगों को उनकी आइडियोलॉजी से डिस्कनेक्ट करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उन्हें कुछ कह सकते हैं, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे कि एक भारतीय सेना खड़ी होगी, उन इस्लामिक लोगों से लड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। उनका डी रेडिकलाइजेशन आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ वहां पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट ला सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, हाँ अपना कुछ इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो हिंदू पॉपुलेशन या वो पॉइंट कुछ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसे किसी तरीके से अपने साथ रखा जाए। ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, आगे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है निश्चित तौर पर। हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग कहीं ना कहीं दिल्ली में, साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हैं, जो इस चीज को जानते होंगे और समझते होंगे। और वो उन्हें एक जो हमें सबसे पहले जो बांग्लादेशी आज सोचता है उसके ऊपर सोच करके हमें काम करना होगा, ना कि दिल्ली में बैठा एक बाबू या ब्यूरोक्रेट कैसे सोचता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो इसकी जड़ है, जो रूट कॉज है, वो रेडिकल इस्लाम है और कुछ भी नहीं। जी, कंक्लूजन में आप दोनों क्या बोलना चाहेंगे? पहले अनिमित्रा जी। India had made a great, India had created an overwhelming history in 1971. So, but 1971 is past. We must retain our prominent position and paramountcy. We shall have to be dominant in the entire South Asia. And to retain the dominance, we shall have to follow each and every approach, each and every procedure to maintain the dominance of the other nations. I'm very sorry. Whether anyone may term me as Nazi, fascist, or anti-democratic, it doesn't. I do get damn all this. The first and foremost thing is my nation's interest, and the national interest means the interest of my own population. To retain the dominance of India, the Indian dominance in the South Asian politics, India has got to be more serious, more definite, and more stubborn. शिवम भाई। जी, बिल्कुल। मैं फिर से अनिमित्रा जी की बात से सहमत हूं कि इंडिया को एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करना पड़ेगा साउथ एशिया में। मुझे लगता है कि इंडिया को अब इंडो एशिया जैसे टर्म यूज करने चाहिए, ताकि ये लगे कि जो साउथ एशिया है वो पूरा एक पैन इंडिया, जो कहते हैं ना कि इंडिया यहाँ का दादा है। इंडिया को ये दिखाना पड़ेगा कि इंडिया यहाँ का एक एक्सेस है, उसके अराउंड ही सब कुछ चलता है। तो इंडो एशिया या कुछ इस तरह के टर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे। उस तरीके से हमारे रिलेशंस को हमें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एज ए इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है, अब कोई भी देश हमें इग्नोर नहीं कर सकता। आज यूएस हो, रशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, हर कोई हमसे अच्छे रिलेशन चाहता है। उन्हें ये पता है कि हम दोनों पार्टियों के साथ खड़े हैं, फिर भी दोनों पार्टियां हमारा साथ चाहती हैं। तो इंडिया ऐसी पोजीशन में है कि ऐसी खासकर 2014 के बाद कि हम एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ गए हैं जहां से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हर तरीके से करना चाहिए। आज किसी भी देश को या किसी अर्थव्यवस्था, आर्मी या कोई भी हमसे ना तो टक्कर ले सकता है,
और कम से कम अगर मान लो अगर चाइना भी ये सोचता है कि वो हमसे युद्ध लड़ेगा, भगवान ना करे हम हार भी जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं होगा, वो हमने तवांग में देख लिया कि वहां पे क्या हुआ, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ हम दूसरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर, तो कोई भी हमें इग्नोर नहीं कर सकता, हमें उसी पोजीशन का आज इस्तेमाल करना है, अपने आप को और बड़ा बनाना है, इकोनॉमिक माइट बनाना है, ताकि बांग्लादेश को भी ये लगे कि इंडिया के अलावा हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और नहीं ही कर सकते, क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो भारत के भरोसे चल रही है आज के समय में, भारत बहुत सब कुछ उसे प्रोवाइड करा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो भारत को अपनी इकोनॉमिक माइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल सोशल अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आज अगर जिस तरीके से हम चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में हम वो चीजें ज्यादा आसानी से और अच्छी तरह कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी थैंक यू अनिमित्रा जी, थैंक यू शिवम भाई, आप दोनों आए हमारे चैनल पे। आज एक खास मौकों पर, खास दिन पर खास बात हमने किए, क्योंकि हम बंगाली है, हमारे बंगाल को तोड़ दिया गया था, एक नया देश की गठन उसके बाद हुए, पाकिस्तान बने, पाकिस्तान से बांग्लादेश बने, लेकिन हमारे मन में वो दुख हमेशा रहेंगे कि 1905 में जो हुआ था उसको रिपीट किया गया था 1947 पे, लेकिन उसके बाद जो हुआ बंगाल को ही अलग कर दिया गया, यह दुख हमारे मन में रहेंगे। इसके साथ ही हम हमारे आज की शो खत्म करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया। हाँ बोलिए। Dr. Vasudha, one thing I must add with that, this Bangladesh has no relation, has no no identity, no relation to the sacrosanct Bengali literature or the civilization that has been going on for centuries. It must be admitted for the fact. The Bengali accent has come, the Bengali language has come from the Sanskrit, the mother of all languages. The Bengali is considered as the daughter of the sacred Sanskrit language, number one. And the Pakistan is Pakistan, or the Bangladesh negates the entire discipline of Sanskrit. They are trying to write the Bengali language in a new manner, but they are unfortunate since they can't break the Nattavidan or Sattavidan, or the Sanskrit grammar that has a commendable influence on the ancient Bengali language. And that has made the rivalry more bitter. So if you are shocked still, if you are aghast, if you are sad that Bangladesh is not with us, it's not the reality. This is a no, this Bangladesh is not related to us, the Indian civilization. We have no interest to it. Thank you. शिवम भाई बोलिए। हाँ, मैं अब पहली बार शायद अनिमित्रा जी से थोड़ा डिसएग्री करूंगा, ऐसा नहीं है, मैं उस भूमि को उतना ही प्यार करता हूं जितना इस भूमि को करता हूं, क्योंकि हमारी माँ की 51 शक्तिपीठ में से एक माँ ढाकेश्वरी भी वहां पर है, तो मैं चाहूंगा कि वो जमीन, वो हिस्सा भी मेरे साथ हो। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि एक किताब के बलबूते या एक सोच के बलबूते वो हमसे उस जमीन को, उस चीज को अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग अलग सोच सकते हैं, वो लोग एक अलग देश बनाने का, उसे चलाने का सोच सकते हैं, वो अलग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे मन से उस प्यार को, उस जुड़ाव को दूर कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो मेरे लिए वो बांग्लादेश की वो भूमि, ठीक है मैं वेस्ट बंगाल या बंगाल से नहीं आता, लेकिन मैं उस भारत में जन्मा हूं जिस भारत की वो भूमि थी, तो मेरे लिए वो भी उतना ही पूजनीय, उतना ही जरूरी है जितना किसी भी भारत में रहने वाले व्यक्ति के लिए है। वो भाषा में परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं, वो कल्चर बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ना तो वो इतिहास बदल सकते हैं, ना वो हमारे मन में जो उसके प्रति भाव है वो बदल सकते हैं कभी भी। तो इसलिए मेरे लिए बांग्लादेश की वो भूमि उतनी ही प्यारी है जितनी भारत का कोई भी एक कोना। जी थैंक यू, बट आई मस्ट एड वन थिंग दैट the original deity of Dhakeshwari Devi is in Calcutta. Okay, what is in Dhaka at the moment is just the second one. Okay, and the एकान्न के पीठ के जो अंतर्गत है, जो सीताकुंड चट्टग्राम में है. Now what I am trying to say is something different. This happens to be one of the most ancient regions of the original of the Hinduism in the from the
from the prehistoric times, but it has been snatched by us. It has been snatched by a world generation. It has been snatched by a civilization that is at war with us, even if from its beginning. Okay, so if we have the power, we should have to snatch it. अगर शक्ति है तो हमें उसको पाना चाहिए. We should have to regain it. हमें बांग्लादेश को फिर संस्कृत कोड में लौटाना चाहिए. This is my thing. Thank you. शिवम भाई बोलिए. लास्ट लाइन, हमारे साथ आज तक जो भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमने अपने ना तो दुश्मनों को जाना, ना हमने अपनी शक्ति को जाना. अगर हमें ये चाहिए कि आगे हमारे साथ ऐसा ना हो, तो हमें जैसे हनुमान को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया था, ऐसे ही संपूर्ण हिंदू समाज और इस देश के रहने वाले व्यक्ति को उसका एहसास करना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही पिटते रहेंगे और हम कंप्लेंट कहाँ करेंगे, कहीं भी नहीं कर सकते. कमजोर जो होता है ना, उसके साथ गलत ही होता है और उसके साथ सही होता है. मैं तो ये कहता हूँ सही होता है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, हमारे लिए लड़ने कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा. हमें अपने भूतकाल से सीख लेके भविष्य में वर्तमान के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम 1500 साल से या 2000 साल से हमारे साथ आ रही है, ये आगे भी निरंतर आती रहेंगी, नहीं रुकेंगी, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. जी, थैंक यू. आप दोनों आए हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, इतनी वैल्यूएबल बातें कही. दर्शक आप भी देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया. नमस्कार. धन्यवाद.